Hello students, here I'm back with another video. Myself Ishwarya Sharma, and this is a doubt of my student. Student asked me about personal pronouns, the type of a pronoun, right? So first of all, for this we should know what is pronoun. Do you know pronoun? What is the meaning of pronoun? Yes, pronoun means the see here you can see noun also written. Here you can see pro written in front of the noun. That means it is related to nouns, right? Pronoun is related to nouns. So noun, what are nouns? First of all, when we are understanding pronoun, we should know what is noun. Okay, so noun is the name of anything in this universe. Noun is the name of anything in this universe. Whatever there we have in this universe, the noun is the name of all those things. Okay, like cap, Almira, Ashwarya, laptop, door, anything in this universe, if it is having a name, the name of that thing, place, person, or any idea, or any animal, or any species, any planet, mountains, the name of anything in this universe we have that is called noun. So basically, what is pronoun then? Okay, so today we are going to learn all about personal pronoun today and all about related to pronoun. Okay, what is pronoun? So related to pronoun, first we will be going to understand what is pronoun. Okay, and then you will be able to understand what we will be going to learn in personal pronoun. Okay, so what is pronoun? I think so you know about it. Do you know what a pronoun is? As I said, noun, about a noun, name of anything in this world. So pronoun is what? A pronoun is a word which used to substitute someone's name in a sentence. That means if we have a lot of, if we are writing a name again and again, if I'm saying, uh, Ashwarya is very intelligent, Ashwarya is very cute, Ashwarya is very beautiful, Ashwarya is very good student. So what I'm doing, I'm saying Ashwarya, Ashwarya, Ashwarya again and again. So I can substitute Ashwarya name with anything else. So all those words which I can write at the place of a noun, that is called pronoun. All those words which we can write at the place of noun, it is called pronoun. Okay, now pronoun has different types. Okay, pronoun are of a lot of different types, like personal pronoun, we have demonstrative pronoun, we have question pronouns. So different types. Relative pronoun, we have different types of the pronouns. So the first type we will be going to understand today, which is called personal pronoun. So pronoun हमको समझ आ गया, बहुत सिंपल है. प्रोनाउन वो शब्द होते हैं, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? वो शब्द जो हम नाउन की जगह पर सर्वनाम, प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम. सर्वनाम क्या होते हैं? जो हम संज्ञा की जगह पर यूज करते हैं, जो हम संज्ञा की जगह पर यूज करते हैं. तो वैसे ही प्रोनाउन क्या होंगे? ऑल दोज वर्ड्स विच वी कैन यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन. Okay, and similarly personal pronoun is what? Is a word used to substitute someone's name in a sentence. Okay, so personal pronoun means कि किसी noun को directly denote करने वाले pronoun personal pronoun होते हैं. Directly मतलब कि जो noun है उसका जिस तरह से gender है उस तरह से हम pronoun use करेंगे. उसका उसकी जितनी क्वांटिटी है उस नाउन की, उस तरह से हम प्रोनाउन यूज करेंगे. तो प्रोनाउन जिस नाउन की जगह पर यूज हो रहा है, तो उस प्रोनाउन के लिए वो नाउन उसका एंटीसीडेंट कहलाता है. क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट कहलाता है. अगर मैं जैसे ऐश्वर्या, मैं क्या बोल रही हूँ? ऐश्वर्या इज वेरी ब्यूटीफुल, ऐश्वर्या इज वेरी क्यूट, ऐश्वर्या इज लुकिंग gorgeous or something. So I am using she at the place of ऐश्वर्या, क्योंकि मेरा जेंडर, ऐश्वर्या का जेंडर क्या है?
गर्ल, शी इज अ गर्ल, तो गर्ल के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? शी। तो हम जेंडर को भी देखते हैं। अब शी प्रोनाउन के लिए एंटीसीडेंट क्या हो गया? ऐश्वर्या। क्यों हो गया? क्योंकि मैं शी को किसकी जगह पर रख रही हूँ? ऐश्वर्या की जगह पर रख रही हूँ। तो जिस नाउन के लिए हम उस प्रोनाउन को यूज करते हैं, उस प्रोनाउन के लिए वो नाउन उसका एंटीसीडेंट हो जाता है। तो प्रोनाउन किस पर डिपेंड करता है? एंटीसीडेंट पर। एंटीसीडेंट कैसा? जिस तरह से एंटीसीडेंट होगा, उसका जो जेंडर होगा, वही प्रोनाउन हम यूज करेंगे। ठीक है। अभी कितने प्रोनाउन होते हैं हमारे पास? जो पर्सनल प्रोनाउन, मेनली पर्सनल प्रोनाउंस हम ज्यादा पढ़ते हैं और ज्यादा यूज भी करते हैं। इसके आगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं जो कि पॉइंट आउट करने के लिए यूज होते हैं। दीज, दोज, दैट, ये आपको पता ही होगा, यू हैव लर्नड इट इन योर फर्स्ट स्टैंडर्ड ना, कि अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है तो आप बोलते हो दिस इज अ कॉपी। अगर बहुत सारी कॉपीज है तो आप क्या कहते हैं? दीज आर द कॉपीज। तो व्हाट आर दिस? दिस आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बट पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? वो किसी नाउन को डायरेक्टली पर्सनली बिल्कुल एंटीसीडेंट को उस अकॉर्डिंगली एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंगली डिपेंड करते हैं और उसी अकॉर्डिंगली हम उसको यूज करते हैं। दिस आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो व्हाट आर द पर्सनल प्रोनाउन? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, हिम, हर, अस, देम। दिस आर द पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, ही मतलब वह, लड़के के लिए फॉर अ बॉय, शी मतलब वह, लड़की के लिए फॉर अ गर्ल, इट मीन्स, वी यूज इट फॉर एनिमल्स। ठीक है। वी यूज इट फॉर whom? We use it for animal, single animal, and single non-living thing. If we are talking about single animal like cat, okay, so if I'm saying the dog is barking, so I want to use a pronoun at the place of the dog, तो मैं क्या लगाऊंगी? I will use it. It is barking. ओके। सो कोई सिंगल एनिमल है, एक वचन है, कोई एनिमल है जो एक है, उसके लिए मैं इट यूज करूंगी। और कोई चीज है, कोई नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, कोई चीज है, कोई थिंग है जो कि एक है, उसके लिए मैं इट यूज करूंगी। अंडरस्टूड? जैसे द वॉच इज हैंगिंग ऑन द वॉल, द वॉच इज हैंगिंग ऑन द वॉल। तो वॉच क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, एक वॉच के बारे में बात कर रही हूँ, तो एट द प्लेस ऑफ द वॉच आई कैन यूज इट। It is hanging on the wall. Understood? Very simple. चलो नेक्स्ट हम आते हैं। तो हमें समझ आया कि मैं it कहाँ यूज करूंगी? If there is a single animal, if there is a single thing, so at that place only, उन्हीं के नाउन की जगह पर मैं it यूज करती हूँ। सेकेंड, आई मैं खुद के लिए यूज करती हूँ जब मुझे बताना है कि आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम स्टडिंग, आई एम टीचिंग। सो मैं अपने लिए जब मुझे बताना है तो मैं प्रोनाउन आई यूज करूंगी। ठीक है। यू मैं दो तरह से यूज कर सकती हूँ। एक तो किसी सिंगल पर्सन के लिए, जो कि कोई एक सिंगल पर्सन है जो मेरे सामने है, या मैं नहीं हूँ, कोई और है इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो डायरेक्टली इफ आई एम टॉकिंग टू दैट पर्सन, सो आई विल से यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। दैट मीन्स दैट पर्सन शुड बी देयर इन फ्रंट ऑफ मी। वो पर्सन को मेरे सामने होना पड़ेगा, तभी वो मैं यू से उसको डिनोट कर पाऊंगी। राइट। अगर जैसे यू ऑल आर माई स्टूडेंट, सो राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी अ लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स आर सिटिंग, सो आई कैन से यू ऑल आर माई स्टूडेंट। सो आई कैन यूज यू फॉर अ सिंगल पर्सन ऑल्सो एंड फॉर मोर देन वन पर्सन हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है। सो यू उस तरह से यूज हो गया। ही हमें पता ही है, अगर मेरे सामने कोई है भी नहीं लेकिन मुझे उसके बारे में बात करनी है और वो कोई लड़का है, तो मैं बोलूंगी ही इज वेरी मिशीवियस, ही डजंट लिसन टू मी, वो मुझे नहीं सुनता है, ही डजंट कॉल मी, वो मुझे फोन नहीं करता है। तो I'm talking about the person who is not in front of me, but I'm talking about him, okay, with the use of pronoun। अभी इसमें ये स्पेसिफिक नहीं होता कि मैं किस ही के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी लड़के के लिए मैं ही यूज कर सकती हूँ, कोई भी लड़की के लिए मैं शी यूज कर सकती हूँ। तो ऐसा होता है ना, जब आपको किसी के सामने ऐसे बताना होता है कि नहीं वो जो है ना वो ऐसा करता है, वो नहीं वो जो है, तो कोई बाकी जो इंसान है वो नहीं समझ पाएंगे कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। राइट। सो प्रोनाउन इस तरह से यूज होता है कि जब आपको पहले से वो नाम पता हो और आप फिर उस कंटेक्स्ट में उस नाम के लिए उस प्रोनाउन को, उस सर्वनाम को यूज करते हो।
ठीक है, इट समझ आ गया। वी कहाँ यूज करते हैं? वी हम तब यूज करते हैं जब हम भी इंक्लूडेड हैं उसमें। आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट थिंग, लाइक इफ आई एम सेइंग माई फ्रेंड्स एंड आई गोइंग टू द पार्टी, मतलब मैं भी हूं उसमें, माई फ्रेंड्स मेरे दोस्त और मैं, हम दोनों मिलकर के पार्टी में जा रहे हैं, तो हम हमारा क्या बन गया? एक ग्रुप बन गया जिसमें मैं भी हूं, तो मैं हम यूज करूंगी, राइट? लाइक मी, आई एंड यू ऑल आर स्टडिंग, आई एंड माई फ्रेंड्स आर स्टडिंग, तो मैं और मेरे दोस्त, तो इसकी जगह मैं क्या यूज कर सकती हूँ? आई एंड माई फ्रेंड्स, आई कैन यूज वी आर स्टडिंग, ठीक है। सो वी यूज, हम वी तभी यूज करते हैं जब हम उसमें इंक्लूडेड हों। हम वी कब यूज करते हैं? जब हम उसमें इंक्लूडेड हों, जब मैं उस कंटेक्स्ट में इंक्लूडेड हूँ, जब मैं उस नाउन, जो नाउन बन रहा है, जो सब्जेक्ट बन रहा है सेंटेंस का, उसमें मैं भी हूँ, आई भी है, या ठीक है, तो हम वी यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कैन से माई पेरेंट्स एंड आई आर गोइंग टू मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं और मेरे मम्मी पापा दादा दादी को मिलने जा रहे हैं, तो मैं और मेरे मम्मी पापा, तो हम दो लोग हो गए, तो मैं क्या यूज करूंगी? जिसमें मैं भी हूँ, दो लोग हो गए मीन्स एक से ज्यादा लोग हो गए, तो मैं भी हूँ, ग्रुप है, ग्रुप ऑफ अ पीपल, सो आई विल यूज वी, ठीक है, जिसमें मैं इंक्लूडेड हूँ। एंड वी हम हमेशा जो है ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज करते हैं जिसमें हम, मैं भी, जिसमें आप खुद भी इंक्लूडेड होते हो, तो ही आप वी यूज करोगे, अदरवाइज आप वी यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो समझ आ गया। अभी नेक्स्ट, व्हाट इज दे? दे, हम पहली बात तो हम दे यूज करते हैं फॉर प्लूरल थिंग्स, ठीक है, वी को भी हम प्लूरल थिंग्स के लिए यूज करते हैं, मतलब एक से ज्यादा चीजों के लिए, लेकिन दे जो है एक से ज्यादा चीजों के लिए यूज होता है, दे जो है एक से ज्यादा एनिमल्स के लिए यूज होता है, ठीक है, दे जो है वो एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है, लेकिन आप उसमें नहीं हो, सो वी यूज दे फॉर मोर देन वन पर्सन, okay, in which you are not included, for more than one thing in which you are not included, for more than one, because thing, you are not the thing, right? For more than one animal, okay, so like if a lot of cows are there, so the cows are eating grass, so at the place of the cows, because more than one cow is there, I will use they are eating grass, okay. So for more than one animal, I will use they. For more than one thing, for more than one thing, I will use they. Like for example, um all the dresses are looking very beautiful, so they are looking very beautiful, okay. So all the dresses, at the place of all the dresses, I use they are looking very beautiful, okay. Okay, so this is called, we can use they, like they are looking beautiful on you, like there are two pair of clips I used in my hair, so what I can say, they are looking very beautiful on me, okay, the flowers are looking very beautiful on me, so they are looking, so the things which are more than one, we will use they, okay. But if you can point out those things, you can say these, which is demonstrative pronoun. अभी we will learn that, है ना, उसको हम पढ़ेंगे। अभी पर्सनल pronoun में हमें दे समझ आया, सिंपल है, एक से ज्यादा चीजों के लिए दे यूज करते हैं, एक से ज्यादा जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए दे यूज करते हैं, एक से ज्यादा इंसानों के लिए, पीपल के लिए, फॉर लोगों के लिए हम दे यूज करते हैं, जिसमें हम नहीं है, जिसमें मैं नहीं हूं, उसके लिए मैं दे यूज करूंगी। लाइक माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू द पार्टी, सो दे आर गोइंग टू द पार्टी, सो एट द प्लेस ऑफ माई फ्रेंड्स आई कैन यूज दे, ठीक है। मी हम कब यूज करते हैं? वी यूज, दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, आप इसको ये भी कह सकते हो, जैसे पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, एक होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो आई के लिए मैं ज्यादातर क्या यूज करूंगी? मी, लाइक ही इज कॉलिंग टू मी, ओके, ही इज कॉलिंग टू मी, मतलब मैं खुद के लिए मी यूज करूंगी, जैसे आई है ना सब्जेक्टिव प्रोनाउन में, वैसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में मी है मेरे पास में, कि अगर मुझे खुद की बात करनी है तो आई ऑब्जेक्ट में मैं लगा सकती हूँ मी,
है ना. लाइक ही इज नॉट कॉलिंग टू मी, माई फ्रेंड इज नॉट कॉलिंग टू मी मतलब मुझे कॉल नहीं कर रहा है. ठीक है, तो दिस इज अ प्रोनाउन जो हम ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं. ऑब्जेक्ट मतलब सेंटेंस के पीछे यूज करते हैं, सेंटेंस के आगे यूज करते हैं, इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोनाउन. और वो सब्जेक्ट होता है जो पूरे सेंटेंस में काम कर रहा है. अभी सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में पूरे सेंटेंस में बात हो रही है. ठीक है, लाइक आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूं, तो किसके बारे में बात हो रही है, मैं के बारे में. सो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. ठीक है, इसी तरह मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट में यूज होगा, यूज हो रहा है कि ऑब्जेक्ट में मेरे साथ क्या हो रहा है. मतलब दैट दैट डजंट मीन कि आप ये शो करना चाह रहे हो. मी जो है एक तरह से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ये है, क्योंकि बेसिकली इट यूज इन ऑब्जेक्ट, ज्यादातर ऑब्जेक्ट में यूज होता है. और इस इसमें ये बताया जाता है कि जो सब्जेक्ट है वो किसी दूसरे प्रोनाउन के साथ क्या कर रहा है. सो दैट इज कॉल्ड सेकंड सब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट में लाइक कोई काम कर रहा है सब्जेक्ट, लेकिन वो किसी जो सेकंड पर्सन है जो कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है उसके साथ में उसके लिए कुछ काम कर रहा है या उसके साथ कुछ कर रहा है. लाइक ही इज नॉट कॉलिंग टू मी, तो मेरा सब्जेक्ट है ही सेंटेंस का, वो मुझे कॉल नहीं कर रहा, तो मुझे कॉल नहीं कर रहा. ठीक है, मैं यहाँ कोई काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये मेरा प्रोनाउन है जो ये शो कर रहा है कि वो मेरे साथ क्या हो रहा है. ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स के सब्जेक्टिव प्रोनाउन के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी होते हैं. जैसे ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है हिम, ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है हिज. ठीक है, he is going he is buying his books, he is taking his books from me. ठीक है, so he is not she is not calling to him, वो उसको कॉल नहीं कर रही है. सो शी, फिर शी एक सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है, लेकिन वो यहाँ पर किसी इंसान के साथ कोई चीज नहीं कर रहा है, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी होते हैं. आई कैन नॉट यूज ही देयर. शी इज नॉट कॉलिंग टू ही, नहीं. अगर आपको ऑब्जेक्ट में ही के लिए कुछ बात करनी है, मतलब कोई लड़के के लिए बात करनी है और वो आपको शो करना है, तो आपको हिम लगाना पड़ेगा. ठीक है, दैट्स कॉल्ड शी के ही के लिए हिम, शी के लिए हर. शी इज टेकिंग हर ड्रेस, शी इज टॉकिंग विद हर. ठीक है, तो हर मीन्स समथिंग, इफ यू वांट टू यूज फॉर शी यू विल यूज हर. ठीक है, अगर आपको शी के लिए बात करनी है, किसी लड़की के चीजों के बारे में बात करनी है, या किसी लड़की के बारे में बात करनी है जो आप ऑब्जेक्टिव मतलब उसके साथ कुछ ऐसी चीज हो रही है, जैसे आप बोल रहे हो कि मैं उससे बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग टू हर, आई एम नॉट टॉकिंग टू हिम. ओके, अब वहां ही और शी यूज नहीं कर सकते. जब आप ऑब्जेक्ट में, जब आप सब्जेक्ट नहीं हो सेंटेंस का और आप सिर्फ कुछ कर रहे हो किसी प्रोनाउन के साथ में, ठीक है, मतलब किसी सर्वनाम को यूज कर रहे हो किसी पर्सन के लिए, तो अगर वो लड़का है तो आप हिम यूज करोगे, कोई लड़की है तो हर यूज करोगे, लेकिन आप सब्जेक्ट में ही और शी यूज नहीं करते. अस, वी आर taking, um, you can use us for we. Okay, objective pronoun, like we are talking about us, we are playing um, with the we are playing sorry, he is playing with us, he is playing with us, she is playing with us. ठीक है, सो यहाँ पर वो हमारे साथ खेल रही है, वो हमारे साथ खेल रहा है, तुम हमारे साथ खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग विद अस. ठीक है, तो अगर हमारे की बात हो रही है, जैसे वी है, वी के लिए ऑब्जेक्ट में मुझे यूज करना है तो आई विल यूज अस. ठीक है, more than one person, if you want to talk about more than one person in your sentence, but that person is not the subject of the sentence, then you will use it in object. ठीक है, okay, इसी तरह से they, for they we have some examples, we'll look uh,
on I'm sorry, on all of those examples. Okay, so like for example, Catherine carried her cute pink backpack into her classroom. So listen, Catherine is a girl. I'm talking about this Catherine. She's a girl. Okay, and about that girl there is something happening. So what I'm saying, Catherine is the subject of the sentence. Okay, and for Catherine I'm talking about that her some something happening with her belongings. So I will say carried her cute pink backpack into her classroom. Okay, understood? Marcus went to the store and bought his mother a bunch of flowers. So we are talking about Marcus, right? So for Marcus, Marcus is a boy. So Marcus' mother would be his mother. Okay, so that's why I will use his. So there, him was not written, but him and his. These are the two objective pronoun we use for he. हम he के लिए दो objective pronoun use करते हैं, which is his and him. ठीक है, if you are talking about कुछ belongings के बारे में बात कर रहे हैं किसी लड़के की, तो हम his use करेंगे. Like he is taking his books, he is talking about his dress, he is talking about his uniform. Okay, he is talking about his class. So something which belongs to that person, तो हम his use करते हैं. ठीक है, लेकिन if there is something him where we use him, so direct mention करने के लिए we use him. Like she is not talking to him, so I'm talking about him only. अगर मुझे directly he को use करना है, उस लड़के को use करना है, तो मैं him use करूंगी. लेकिन मैं his कब use करूंगी, जब मुझे उसकी belongings को mention करना है. ठीक है, कि वो अपनी बुक्स को नहीं ले जा रहा, he is not taking his books, है ना. अभी मैं बिलोंगिंग्स मेंशन करनी हूँ उसकी, तो मैं हिज लगाऊंगी. जैसे यहाँ पर मार्कस की मदर जो है वो उसका पॉजेसिव थिंग है ना, उसकी उसकी मम्मा है, तो मैं हिज यूज करूंगी. लेकिन अगर मुझे उसके ही डायरेक्टली बारे में बात करना है, लाइक मार्कस वेंट टू द स्टोर एंड बॉट his mother a bunch of flowers, so Marcus went to the store uh, and bought some toys for him. उसके लिए आई एम टॉकिंग अबाउट हिम डायरेक्टली, तो मैं हिम यूज करूंगी. ठीक है, जो डायरेक्ट उसको मेंशन करेगा तो हिम, अगर उसकी बिलोंगिंग्स के बारे में बात करनी है तो हिज. ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस फॉर ही. वी हैव टू प्रोनाउंस, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस एंड ऑब्जेक्टिव. तो ही के लिए दो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हो गए, हिज और हिम. शी के लिए एक ही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, जो कि होता है हर. Alice was playing dolls with her little sister in their bedroom. Now see, Alice and little sister becomes two person. So now if I am talking about किन्हीं दो लोगों के बारे में बात कर रही हूँ और उनकी बिलोंगिंग्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं यूज करूंगी देयर. जैसे हिज में हुआ ही, हिज और हिम, है ना. वैसे ही दे के लिए अगर बिलोंगिंग के बारे में बात करेंगे तो हम यूज करेंगे THEIR, देयर. दिस देयर आई विल यूज. ठीक है, आई विल यूज दिस देयर फॉर द बिलोंगिंग्स. लेकिन अगर मैं बिलोंगिंग के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ, तो आई विल यूज them. Okay, I will use them. Now what is them को कैसे यूज करूंगी, like they are talking about them only. They are he is playing with them, वो उनके साथ खेल रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर दो हमें डिफरेंस समझ आ गया. दे के लिए देयर, THIR, देयर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, एंड THEM, them ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. ठीक है, they were jumping on the trampoline with their friends yesterday. तो अभी belongings है तो their यूज करेंगे, अगर खुद के बारे में बात है तो them यूज करेंगे. तो she के लिए her हो गया, he के लिए his and him हो गया, and
दे के लिए देयर एंड देम हो गया, ठीक है। नाउ फॉर वी के लिए भी दो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, एक होता है अस, एक होता है आवर, ठीक है। तो अस डायरेक्टली उनके बारे में बात कर रहे हैं तो अस करेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हम यूज कर रहे हैं और डायरेक्टली उनके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे शी इज प्लेइंग विद अस, मतलब डायरेक्टली हमारे ग्रुप के बारे में बात हो रही है तो अस, लेकिन किसी बिलोंगिंग के बारे में बात होगी तो आवर, लाइक वी आर कंप्लीटिंग आवर्स होमवर्क, she is she is taking ours copy, ओके। सो कोई बिलोंगिंग के बारे में बात हो रही है तो ओ यू आर आवर, वी विल यूज ओ यू आर आवर, okay, this we will use our. And if we are talking about directly about we, so in objective pronoun we will use us, simple. Let's go. Okay, so now we, for we know. Okay, now which word is a personal pronoun in this sentence? You have to write me in the comment. Olivia was finishing her homework. Okay, which pronoun, which person, which is the personal pronoun, and which type of personal pronoun? Subjective and objective. Okay, and you can just add some subjective pronoun also in this sentence and let me know in the comment section. Okay, the second question is the cat was playing with his toy. Okay, so at the place of the cat you can use any subjective pronoun, and which is the subjective or objective pronoun in this sentence, you have to let me know about it. Okay, okay, so let's move to the this slide again. So this is an objective pronoun, I is an objective pronoun. Okay, and for I we have, this is subjective this is sorry, I is a subjective pronoun, and for I we have me as a objective pronoun, and my is also a objective pronoun. For you we have objective pronoun your, only your. I'm talking about, and you can use, this is the only pronoun where you can use you for as a subject also and as a object also, like we are talking about you. Okay, and if I want to talk about something which is the belongings, I will use your, like you are taking your copy, you are sitting on your clutch. Okay, so your we will use in the object for the belongings, and you we will use for talking about the directly about that person, as we were doing in he and she. Okay, he and they. So you, your, and you, these are the two objective pronoun for you. He, this is the subject. For this he subject we will use two pronouns. What are this two objective pronoun? His and him. Okay, his and him, his, his and him. For she we have only one objective pronoun which is called her. Okay, for it we have objective pronoun which is called that, that, that. Okay, for we have two objective pronoun, one is us and second is our, our, our. For they we have two objective pronouns, sorry, first is e I and r, their. This is one objective pronoun and this is second objective pronoun, them. Okay, so for they we have two objective pronoun, we have two objective pronoun which is our, okay, and us. For she we have one objective pronoun, he we have two objective pronoun, him and his. For you we have two objective pronoun, one is you and second is your. For I we have two objective pronoun, me and my. Okay,
So here we are ending um, this complete topic. I think so that you are now able to understand about the personal pronouns. What are the personal pronouns and the types of personal pronoun? We have subjective and objective pronoun. So, what are the subjective pronoun, where we can use the objective pronoun, and which pronoun we can use as the belongings if we want to talk about something related to the belongings of that person, or something related to that person directly. So, which type of pronoun we can use for this type of in the sentence. Okay, so I feel so this topic is crystal clear for you. And if you have any other doubts, you can text me, you can comment me down your doubt, and I will try to make a video on that doubt of yours. And you can also join our daily session, which are live sessions only in 300 rupees per month. For that, you can write me in the comment. So do write us in the comment for the daily live session if you want. The fees is only 300 rupees per month. Thank you so much. Take care and sayonara.